Hello friends, myself Sumit Jain. Today we are going to discuss one type of data structure which is called stack. So before moving forward, by knowing what is stack, how it works, how it performs, first we will understand what is data structure. So data structure is basically a mathematical and logical model for organizing interrelated data. Mathematical and logical model for organizing interrelated data. Now one doubt once comes again, why we are organizing data? Whenever we write any program or algorithm, this program takes some input and after performing some operations, this program or algorithm will give some output. So during this whole process, when we input some data, some values, we need to store that input. Then when we perform some operations or process, we again need to store some interrelated intermediate results. And after performing operations, when we will get output, then again need to store that output. So if this program will get that input in organized manner से मतलब क्या है यहाँ पर, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में एल्गोरिथम या प्रोग्राम को चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर डेटा इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को मिलता है, then that program or we can say that algorithm will give result in minimum time. That is our requirement. हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारा प्रोग्राम, हमारी एल्गोरिथम ऐसी हो जो कि इफिशिएंट हो और कम से कम टाइम में हमें रिजल्ट दे. सो टू ऑर्गेनाइज डेटा वी यूज डेटा स्ट्रक्चर. ये जो हम बात कर रहे हैं डेटा की ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ से हमारे लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होकर आती है डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटररिलेटेड डेटा. Now we will understand mathematical means मतलब क्या and logical मतलब क्या. So if I talk about mathematical means predefined way of organizing data. Predefined way of organizing data. And logical means operations. If I talk about example, stack. क्योंकि स्टैक के अंदर एक प्रीडिफाइंड वे होता है डेटा को स्टोर करने का, वह क्या होता है, LIFO means last in first out, that we will discuss within few minutes. And if I talk about operations, so example is like push, pop. These are the two basic operations which we perform in stack. So stack is one type of data structure which provides us a predefined way of organizing data.
So whenever we are writing a program and we require the data in that manner, in that order which is stored by the stack, then we can use stack data structure in our program. So by this you can understand what is data structure and why we need data structure and why we are using stack, or whenever we will use stack in our program. So next comes to the our topic, stack, which is one type of data structure. So basically stack is a collection or container which store data in a specific manner, which is LIFO, last in first out. Means stack एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन, एलिमेंट्स का जो इंसर्शन होगा एंड जो एलिमेंट्स का डिलीशन होगा वो एक ही एंड से होगा. मीन्स इस एंड से ही इंसर्शन होगा और इसी एंड से डिलीशन होगा. मतलब वह एलिमेंट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, लाइक दिस, वह एलिमेंट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वह सबसे पहले डिलीट होगा, वह सबसे पहले बाहर होगा. एंड यहीं से ये टर्म इंट्रोड्यूस होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट सबसे लास्ट इन हुआ है वह एलिमेंट सबसे फर्स्ट आउट होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल स्टैक फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस इज अबाउट स्टैक. जिस एंड से इंसर्शन होगा उसी एंड से एलिमेंट का डिलीशन होगा. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम इस कॉन्सेप्ट को मैनेज कैसे करेंगे. हम कैसे ये मैनेज करेंगे कि इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक ही एंड से हो. तो उसके लिए यहाँ पर हम एक स्पेशल पॉइंटर एलिमेंट का यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. क्यों? क्योंकि जब भी कोई न्यू एलिमेंट का इंसर्शन होगा, लाइक सपोज currently we have 5 elements in our stack. If you want to insert one new element which is 6, that 6 will be added at top of the stack. If you want to delete one element, then we will first delete 6 which is at the top of the stack. That's why we maintain a pointer which is called top of the stack, because from top of the stack we will add element or we will delete one element. So in stack we use one variable which is called top. Now suppose this is your stack and we have one element top. If you want to add one element in stack, then we will add here, right? If we want to add next element which is 2, तो वो जो एलिमेंट है 2 वो कहाँ पर जाकर स्टोर होना चाहिए? वो एलिमेंट यहाँ पर जाकर स्टोर होना चाहिए. इससे पहले जो आपने एलिमेंट स्टोर किया वो कहाँ पर किया? यहाँ पर स्टोर किया. हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि जो नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे वो इस 1 के ऊपर यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे कि ये जो टॉप है ये ऑलवेज पॉइंट करता है किसको? करंट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक. किसको पॉइंट करता है? करंट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक. तो ये टॉप जो हमारा वेरिएबल है, टॉप जो हमारा पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? भी 1 को. इफ यू वांट टू ऐड वन न्यू एलिमेंट 2 एट द लोकेशन अबव 1, देन फर्स्ट वी विल नीड टू इंक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर और टॉप वेरिएबल बाय 1. If we will increment top by 1, then top will point to the location where we want to insert our new element. So यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होता है कि जब भी कभी हमें कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होगा स्टैक के अंदर, तो हम टॉप वेरिएबल को पहले 1 से इंक्रीमेंट करेंगे. उसके बाद वो टॉप पॉइंटर अभी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे. तो टॉप आपका यहाँ पर पॉइंट करता रहेगा आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, देन वी विल ऐड न्यू एलिमेंट
at the location pointed by top, which is this location. And in this manner we will add the another elements 3, 4, 5, right? But if we are maintaining the index like 0, 1, 2, 3, 4, as we maintain in array indexing 0, 1, 2, 3, 4, this indexing is used to access the particular location, right? So here we have multiple locations. So by using index we can access any particular location. As per the our discussion, हम क्या कर रहे हैं, जब भी कभी हमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, we are incrementing top by 1. So initially when we will add 1 in the stack, first we will increment the top. We want the value top. हम टॉप को कहाँ चाहते हैं कि टॉप कहाँ पर पॉइंट करे, इस लोकेशन पे. इस लोकेशन की इंडेक्सिंग क्या है, 0. तो व्हाट वी वांट टॉप पॉइंट्स टू द 0th लोकेशन आफ्टर इंक्रीमेंटिंग. सो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होता है कि टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 चाहिए तो इनिशियली टॉप कितना होना चाहिए, -1. दैट्स व्हाई इन स्टैक वी मेंटेन अ वेरिएबल टॉप बाय इनिशियलाइजिंग विथ -1. So if top is initialized with -1 means if value of top is -1, मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि टॉप करंट एलिमेंट जो आपने ऐड किया है स्टैक में उसको पॉइंट करता है. तो इनिशियली अगर टॉप की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स टॉप अभी इस लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इनिशियली अभी आपका स्टैक जो है वो क्या है, एम्प्टी. तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, वो यह कि इफ टॉप इज -1 देन स्टैक इज एम्प्टी. सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एम्प्टी स्टैक, टॉप इक्वल्स टू -1, राइट. नाउ फर्स्ट वी विल इंक्रीमेंट टॉप बाय 1, then we will insert our first value at the location pointed by top. So now top is pointing to the 0th location. If we want to add second element, then first we will increment top by 1. So if top is 0, by increment top will become 1. Now top is pointing to the index 1, and then we will add our next element 2 at the location pointed by top. If we want to add next element 3, 4, 5, so we will follow the same process. First increment top by 1, then insert the element at the location pointed by top. But the important point is initially top will be -1, that will represent your stack is empty. So I hope this basic scenario is clear to all of you. Initially top will be -1. So this is all about the insertion. If we want to delete some elements from stack, so suppose we have one stack of capacity 5, 0, 1, 2, 3 and 4. We have 5 elements like 10, 20, 30, 40 and 50. As I said, top always points to the current element added to the stack. So top is pointing to the 50, or in the form of index we can say value of top is now 4, right? Now if we want to delete one element, then which element will be deleted first? As per the property of stack, which is LIFO, last in first out. So 50 is the last element we added to the stack, so first 50 will be deleted. So if you want to delete an element from the stack, you will decrement top by 1. So if we will decrement top by 1, like in this example value of top is
4. So if we will we will decrement top by 1, then now top will become 3. Now top is pointing to 40. As I said, top always points to the top element of the stack, current element added to the stack, or we can say top element added to the stack, या top of the stack. So if now top is pointing to the 40, means index number 3, means that 50 is now not in the stack. So what is the conclusion? If you want to delete an element from the stack, we will just decrement the top by 1. And as I said in insertion, if you want to insert an element into the stack, first we will increment the top by 1, then we will add the element at the location pointed by top. So by using variable top, we can maintain the property of stack, which is LIFO, last in first out, means insertion and deletion both from the single end, one end. Right? So this is all about the insertion and deletion. Now one important point is, if capacity of stack is 5 and in the form of index last value is 4, means current value of top is 4. If you want to add another element into the stack, then can we add? No. Why so? Because capacity of stack is 5 and currently we have 5 element already into the stack. So if this type of condition comes, stack is already full and we want to add another element into the stack, this condition called overflow. Stack सॉरी, अगर स्टैक ऑलरेडी फुल है और आप एक स्टैक के अंदर कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वह कंडीशन आपकी कहलाती है ओवर। इसी के अपोजिट, इनिशियली आपका टॉप होता है -1, इफ टॉप इज -1 मींस स्टैक इज एम्प्टी, एंड इफ यू वांट टू डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, that we cannot do. Why so? Because stack is already empty, right? Stack में भी एक भी एलिमेंट नहीं है जिसको आप डिलीट कर सकते हैं. So that condition is called underflow. So if you are trying to delete element from the empty stack, means underflow. If you are trying to add element to the already full stack, then this condition is called overflow. So ये दोनों टर्म आपको माइंड में रखनी है कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है. If I talk about the operations of stack, so basically first is push operation, second one is pop operation, and one another operation is peek. Push operation is used to insert one element or to add one element into the stack. Pop operation is used to delete one element from the stack, and peek operation is used to return top of the stack. स्टैक के टॉप पे जो अभी करंट वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विदाउट रिमूविंग दैट वैल्यू, मीन्स वो वैल्यू स्टैक से डिलीट नहीं हो रही है, वो वैल्यू अभी भी स्टैक में है. इट इज यूज्ड टू जस्ट रिटर्न द टॉप ऑफ द स्टैक, मीन्स इफ यू आर यूजिंग पीक ऑपरेशन दैट विल रिटर्न यू द वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट
removing, to return top of the stack without removing. So these are the basic three operations which are used in the stack. Once again I am repeating. Push is used to insert one element, pop is used to delete one element, and peek is used to return the top of the stack without removing it. Clear? So if I talk about the application, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि स्टैक क्या होता है, कैसे वो डेटा को किस मैनर में ऑर्गेनाइज करता है, what are the different operations of stack like push, pop and peek. Next picture is what is the application, why we are studying this stack, what is the application of stack in computer science, right? So first application is to check balancing of parentheses. जो पैरेंथेसिस आपके किसी एक एक्सप्रेशन में होते हैं उनकी बैलेंसिंग को चेक करने के लिए. फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एक एक्सप्रेशन, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ that will be the incomplete expression. So if I write it opening parenthesis, मुझे closing parenthesis भी लिखना. So किसी भी एक एक्सप्रेशन में प्रॉपर बैलेंसिंग पैरेंथेसिस की है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक. कैसे? हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन हमारा है उस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे. जब भी कभी हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे. जैसे ही हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो हम उस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक से पॉप करेंगे. सो अगर बैलेंस जो ये हमारे पैरेंथेसिस है इनकी बैलेंसिंग अगर प्रॉपर होगी तो एट द एंड जब हम एक्सप्रेशन के एंड में होंगे, जब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को स्कैन कर चुके होंगे, तब हमारे पास जो स्टैक होगा वो स्टैक एम्प्टी होगा. क्योंकि जितने ओपनिंग पैरेंथेसिस आए होंगे आपके एक्सप्रेशन में, अगर उसी के करस्पॉन्डिंग उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस होंगे तो सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टैक से पॉप हो चुके होंगे. क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, जब भी कभी हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, व्हेनेवर वी विल स्कैन आवर एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम उस ओपनिंग पैरेंथेसिस को पॉप करेंगे, मींस स्टैक से डिलीट करेंगे. सो एट द एंड अगर इनकी बैलेंसिंग प्रॉपर होगी एक्सप्रेशन में तो आपको क्या मिलने वाला है? एम्प्टी स्टैक, राइट? So this is the one use of stack, or we can say one application of stack in computer science. Second one is undo और redo operation. undo और redo जो है, आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो जो भी हम लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी हम एडिटर्स यूज करते हैं, उसमें हम n number of times undo redo operation perform करते हैं. For example, I am using Microsoft Word, right? First I write it A, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया A, then फिर मैंने टाइप किया B, तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? AB. फिर मैंने टाइप किया C, तो अगली स्टेज मतलब अभी करंट आउटपुट क्या शो हो रहा है मेरी वर्ड की फाइल में? ABC. अब मैं इस प्लेस पे जो शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में Ctrl+Z, या फिर ऊपर फाइल ऑप्शन में होता है अंडू ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पर अंडू परफॉर्म करता हूँ तो जैसे ही आप Ctrl+Z परफॉर्म करेंगे तो करंट स्टेट आपको जो दिखेगी वो दिखेगी AB. इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया था, लास्ट एक्शन क्या था कि आपने एक न्यू कैरेक्टर टाइप किया था Z, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया. तो इसका मतलब अंडू ऑपरेशन ने क्या किया? रिमूव हो गया, मतलब क्या किया? डिलीट.
इसको अगर स्टैक के फॉर्म में देखें तो पहले आपने ए टाइप किया था, फिर आपने बी टाइप किया, फिर आपने सी टाइप किया। तो करंट स्टेट क्या है आपके स्टैक की? करंट स्टेट क्या है? ए बी सी। अब यहाँ से आपने कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही प्रेस किया तो आपके सामने अब आउटपुट दिखेगा ए बी। दैट मीन्स सी इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही हम कंट्रोल प्लस जेड को परफॉर्म करते हैं किसी भी एडिटर के अंदर, हम अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे बेसिकली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? पॉप, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉप हमारा एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टैक में से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, राइट? अब वंस अगेन इफ यू आर प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जेड देन द आउटपुट विल बी ए। मींस जैसे ही आपने एक बार और कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस किया तो फिर से क्या कॉल हुआ? पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ। दैट मींस B is also removed from the stack. So the current state is only A. So I hope this is clear to you how we are using stack in the undo or redo operations. Clear? So these are the basic two applications. Next we will discuss some more application. Third important application of stack is to convert expression. Convert means infix to prefix, infix to postfix. Why so? Because initially we have expression in the form of infix form. These are the form of expression: infix, prefix and postfix. If operator is between the operands, this is called infix. If operator is before the operands, then this is called prefix. If operator is after the operands, then this is called postfix. But whenever we give some expression to the our machine or computer to perform or to execute, we give in the form of infix. For example, you want to calculate value of the expression 2 plus 3 into 5 divided by 6 minus 8. This is just for example, right? So we give expression in the form of infix, but machine cannot solve, cannot execute, cannot evaluate the expression in the form of infix. So our computer, our machine first will convert that particular expression in the form of prefix or postfix. Then that machine can evaluate or solve the expression, right? So first the machine will convert that expression in the form of prefix or postfix. Why so? Because machine cannot solve, cannot perform the expression in the infix form. So this is the application of stack. First we will convert that particular infix expression into the prefix or postfix using stack. इसकी अपनी एक अलग एल्गोरिदम होती है जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि how we can convert the infix expression into the prefix or postfix using stack. So यहाँ पर एक एप्लीकेशन की बात करें तो infix से prefix या postfix में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर यूज करता है किसको? stack। और एक बार हमारा एक्सप्रेशन अगर postfix, इसका एग्जांपल भी आपको मैं एक और बताऊंगा, अगर आपका एक्सप्रेशन postfix या prefix फॉर्म में आ गया, then machine can solve or evaluate that particular expression easily. So this is the another application of stack, to convert the expression from infix to prefix or infix to postfix or some another form. So this is the basic introduction of stack, some application of stack. If I talk about some another applications like
we can use stack in recursion. We can also use stack in backtracking. DFS आपकी एक मेथड होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो ग्राफ आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को अगर मुझे ट्रेवर्स करना है तो ग्राफ को ट्रेवर्सिंग की 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज BFS विच इज कॉल्ड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड सेकंड वन इज DFS विच इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो DFS मेथड जो होती है ग्राफ ट्रेवर्सिंग की, वो स्टैक का यूज करती है। रिकर्जन क्या होता है? Whenever a function called itself, जब कोई फंक्शन अपने ही आपको कॉल करता है तो वो आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है रिकर्जन। जस्ट सपोज एक फंक्शन है फन, ये अपनी ही डेफिनेशन में कहीं ना कहीं अपने ही आपको फिर से कॉल करता है। तो ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है रिकर्जन। तो जब भी कभी कोई फंक्शन रिकर्सिवली कॉल किया जाता है तो उस रिकर्सिव कॉल्स की जो स्टेट्स है वो इसमें मेंटेन की जाती है, राइट? अगर इस फंक्शन को एक वैल्यू के लिए कॉल किया जा रहा है n के लिए, और इंटरनली ये अपने आप को n-1 के लिए कॉल कर रहा है, तो फर्स्ट व्हेनेवर वी आर कॉलिंग द फन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज 5, देन नेक्स्ट ये कॉल होगा 5-1 मतलब 4 के लिए, तो जो नेक्स्ट कॉलिंग है वो 4 के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट जो भी फंक्शन कॉल्स हुए हैं वो सारे स्टैक में मेंटेन होते जाते हैं। एक स्टेज आएगी जहां पर, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, जहां पर भी आपका ये कोड जाकर रुकेगा, वहां से फिर ये सारे कॉल रिवर्स बैक होते हैं और एट द एंड आपको आंसर मिलता है फन ऑफ 5, जो कि आपकी एक्चुअल फंक्शन की कॉलिंग थी। तो इस तरीके से रिकर्जन के अंदर भी आपका क्या यूज होता है स्टैक। इसको आगे हम और डिटेल में देखेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि रिकर्जन से रिलेटेड n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस गेट की एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रिकर्जन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। सो आज मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की, जो कि रिकर्जन होता है। बैक ट्रैकिंग, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जितने भी डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन में से हम किसी एक को पिक करते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। अगर हम किसी ऐसे एंड पे पहुंच जाते हैं जो कि डेड एंड होता है, जहां पर हमें लगता है कि जहां पर मेरे पास चॉइस थी वहां मैंने एक गलत चॉइस या गलत ऑप्शन को चूज किया है, तो हम वहां से फिर से पीछे आते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैक। और वहां से फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन या जो अनदर सॉल्यूशन मेरा पॉसिबल है उसको हम ट्राई करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है स्टैक। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पॉसिबल मूव्स हमने लिए हैं उनको हम स्टोर करते जाते हैं, और अगर हम डेड एंड पे पहुंचते हैं तो फिर से हम पॉप कर करके और कहाँ आते हैं, पीछे आते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये सॉल्यूशन गलत पिक किया था, पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे, ये वाला सही था, यहाँ के रुकेंगे। अब इस वाले पॉइंट पे जो अनदर पॉसिबल सॉल्यूशंस पॉसिबल थे उनको फिर हम ट्राई करते हैं। इसलिए बैक ट्रैकिंग में भी आपका क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है। लाइक वन मोर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आप सभी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, वो आपका है इन ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स में हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी पर्टिकुलर एक वेब पेज को ओपन करते हैं, जब भी हम किसी एक वेब पेज को ओपन करते हैं, लाइक आपका कोई एक वेब पेज ओपन हुआ है, डिफरेंट ऑप्शंस उस पेज पे हैं, आपने किसी एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया तो आप सेकंड पेज पे चले गए उस पर्टिकुलर वेबसाइट की, देन फिर आपने उस सेकंड पेज पे किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक किया तो आप उस वेबसाइट के थर्ड पेज पे चले गए। तो अभी तक आप 2 टाइम्स क्लिक करके और कहाँ आ चुके हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थर्ड पेज पे। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड्स हैं वेब पेजेस का, जिन पे आप क्लिक करके और नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये किसमें मेंटेन होता है, स्टैक। कैसे, ये जो फर्स्ट पेज आपने ओपन किया, इसका जो URL, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो URL जाके और स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है।
जैसे आपने उस पेज पे किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया और नेक्स्ट पेज को ओपन किया, तो इस पेज का जो यूआरएल है वो आपका फिर से अगेन जाके स्टैक में स्टोर हो जाता है। तो जस्ट सपोज दिस इज यूआरएल 1, दिस इज यूआरएल 2 एंड दिस इज यूआरएल 3। जैसे ही आपने नेक्स्ट टाइम फिर से एक पेज को क्लिक किया तो आप अगले वेब पेज पे चले गए, उसका जो यूआरएल है वो आपका फिर से स्टैक पे जाके अंदर जाके स्टोर। अब इस पेज पे जब आप करंटली हैं, मैंने आपको स्टैक के डिस्क्रिप्शन में क्या बताया कि एक वेरिएबल हमारे पास जो होता है टॉप, जो कि ऑलवेज किसको पॉइंट करता है, टॉप ऑफ द स्टैक करंट वैल्यू एडेड टू द स्टैक। सो टॉप अभी करंटली किसको पॉइंट कर रहा है, यूआरएल 3 को। व्हाई? बिकॉज करंटली आप अभी कहां पर हैं, पेज नंबर 3। अब इस पेज पे टॉप में एक ऑप्शन होता है बैक। जैसे ही आप इस बैक बटन को क्लिक करते हैं तो आप कहां आ जाते हैं, प्रीवियस पेज पे। मतलब जब आप इस वेब पेज पे आए उससे पहले आप करंटली जिस पेज पे थे आप उस पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें यहाँ पर क्लियर होती है कि जैसे ही हम ब्राउजर में किसी वेब पेज पे बैक बटन को प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन कॉल होता है, पॉप। तो जैसे ही वो पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ तो वो जो यूआरएल 3 था आपका स्टैक में वो डिलीट हो गया, और टॉप को जब मैंने 1 से डिक्रीमेंट किया तो टॉप ऑफ करंटली किसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, यूआरएल 2 को। दैट मींस करंटली अब आप कौन से पेज पे हैं, यूआरएल 2 वाले पेज पे आप हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैक का, जो कि हमें पता नहीं होता लेकिन हम डेली लाइफ में n नंबर ऑफ टाइम्स ब्राउजर्स को यूज करते हैं। सो दिस इज दी वन अनदर रियल लाइफ एग्जांपल और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। I hope this all is clear to you. So this is the basic introduction of stack. Now if I talk about the some questions, so today I selected 2-3 basic questions for you. So first, suppose we have, I am writing just in the form of pseudo code. Suppose कि हमारे पास एक स्टैक है st, राइट। st आपके पास एक स्टैक है, मैंने यहाँ पर while लूप यूज किया, while a is greater than 0। ये जो लाइन है ये आपकी क्या क्रिएट कर रही है, एक एम्प्टी स्टैक को क्रिएट कर रही है। देन फिर मैंने लिखा कि मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, st कॉमा मैंने लिखा a मॉड्यूलस 2। दैट मीन्स इस लाइन का मीनिंग क्या है, a आपकी क्या है, वैल्यू है, उस वैल्यू को 2 से मॉड्यूलस लूंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगी उस रिमाइंडर वैल्यू को मैं कहाँ पर पुश करूंगा, स्टैक। पुश ऑपरेशन को कैसे लिखा जाता है, स्टैक कॉमा वैल्यू। मीन्स ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ स्टैक। तो सूडो कोड के फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, a मॉड्यूलस 2 की जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, st स्टैक के अंदर। उसके बाद फिर मैं जो a की करंट वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देन फिर मेरा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस लूप आई एम यूजिंग another loop and यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूँ कि जो भी वैल्यूज मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट की है उन सभी वैल्यूज को मैं C में जो हमारा printf फंक्शन होता है printf फंक्शन की हेल्प से मैं प्रिंट करूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन यूज किया पॉप। पॉप क्या करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो वैल्यू है उसको बाहर निकालेगा, और पॉप फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा टॉप ऑफ द स्टैक की, उसको हम printf फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये एक सूडो कोड है और आपके सामने फिर 4 ऑप्शंस होंगे कि ये पर्टिकुलर सूडो कोड आपको क्या रिटर्न करेगा। तो उसके 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अगर इस प्रॉब्लम को हम एक वैल्यू को लेके एक सैंपल
वैल्यू लेके, एक बेस वैल्यू लेके इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जस्ट सपोज कि मैं एक वैल्यू पिक करता हूँ a इक्वल्स टू 16। तो इनिशियली जब वाइल लूप में मैंने चेक किया 16 इज ग्रेटर देन 0, तो हम वाइल लूप के अंदर आ गए। 16 मॉड्यूलस 2, जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0। वो 0 रिमाइंडर वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर देंगे? स्टैक के अंदर। तो स्टैक में क्या जाके स्टोर हुआ? 0। उसके बाद मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? a इक्वल्स टू a by 2। सो दिस इज द डिवाइड ऑपरेटर। सो व्हेन वी विल डिवाइड 16 by 2, it will give 8. 2 8 जा 16. So current value of a is 8. When we call next time this loop for the value 8, 8 is greater than 0, then 8 modulus 2. What will be the remainder? Again 0, because 8 is completely divisible by 2. So again 0. 8 by 2 क्या वैल्यू होगी? 4. 4 मॉड्यूलस 2, अगेन रिमाइंडर क्या होगा? 0। थर्ड वैल्यू स्टेप में क्या जाके स्टोर होगी? 0। 4 by 2 2। जब नेक्स्ट 2 के लिए कॉल करेंगे तो 2 मॉड्यूलस 2, अगेन रिमाइंडर 0। राइट। अब जब मैं 2 by 2 परफॉर्म करूंगा तो कितना होगा? 1। नेक्स्ट जब मैं कॉल करूंगा a की वैल्यू 1 के लिए, 1 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर कितना होगा? 1। देन 1 by 2 तो कितना होगा? 0। हमारी कंडीशन क्या थी कि हम लूप को कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? इफ a is greater than 0. So at this point when a becomes 0, we will stop. So the current value of stack is 0 0 0 0 1. But the property of stack is LIFO, last in first out. So if I want to print the value of stack, so it will print in the order first 1, then 0 0 0 0. So output will be 1 and 4 times 0. This is the binary form. If I will convert that binary form into the decimal, it will gives you 16, which was the initial value we used for this pseudo code. So what output we get? 1 0 0 0 0. It is the binary form of the 16. So here we can say which option will be the correct, which will be, suppose C option is prints binary form of A. ठीक है, कुछ अदर ऑप्शन भी होंगे लाइक रिवर्स बाइनरी फॉर्म, ये बोल रहा है बाइनरी फॉर्म, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा। तो इन 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, प्रिंट्स बाइनरी फॉर्म ऑफ ए। ये जो है आपका इसकी बाइनरी वैल्यू प्रिंट होगी। करेक्ट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट द वन मोर एग्जांपल, so just suppose example 2, suppose we have one code while there are more character in the word to read। जब तक उस पर्टिकुलर वर्ड में कैरेक्टर्स और हैं रीड करने के लिए, तब तक ये लूप चलेगा। और ये लूप क्या परफॉर्म करने वाला है? दिस लूप विल परफॉर्म फर्स्ट रीड अ कैरेक्टर, मीन्स इट विल रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ड, देन
push character onto the stack. So जो भी वर्ड गिवन होगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा और देन उसको स्टैक में पुश करेगा. देन उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोसेस परफॉर्म करता जाएगा. कब तक? while there are more character in the word to read, means जब तक कि complete word read नहीं हो जाता. Then we will use once again while loop. Condition is the stack is not empty. While the stack is not empty, pop a character from the stack and print the character to the screen. So what will be the output of that particular code? So just suppose input word is Sumit. So first this loop will read all the characters one by one and all the characters will be pushed into the stack like this. First S, then U, then M, then I, then T. After completing this loop, we will execute this loop. While the stack is not empty, जब तक stack खाली नहीं हो जाता, pop a character from the stack. Stack से character pop कीजिए and then उसको screen पे print कीजिए. So first, as per the property of stack which is LIFO, first character which will be print onto the screen is T. After deleting T, we will delete, means we will pop I and will print onto the screen. Next M, next U, and next is S. So by seeing this output, you can understand this is the reverse form of the actual input. EIMUS, right? So इस टाइप का क्वेश्चन नजर आता है जिसका आउटपुट क्या होगा, जो इनपुट स्ट्रिंग इनपुट वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसका जो रिवर्स फॉर्म होगा. तो यहाँ पर भी आपके पास जो डिफरेंट 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि आपके गिवन इनपुट का रिवर्स ऑर्डर होगा. क्लियर? So this is one another type of example which can be asked into the exam. These are the basic questions. In the upcoming lectures we will discuss some more important questions related to the stack and related to the other concepts in the subject data structure. So I hope these 2 examples are clear to all of you. So this is the basic introduction of stack. What are the different properties of stack? What are the operations of stack? What are the applications of stack? And after this we discussed 2 basic examples related to stack. From that we can understand what type of questions can be asked related to stack. So there are some more varieties of questions that can be asked related to exams, like infix to prefix, infix to postfix conversion, evaluation of prefix or postfix conversion. This is one another application of stack जो कि रह गया डिस्कस करना. किसी भी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, जो मैंने आपको बताया था कि मशीन जो हमारी है उसको हम जब भी कोई एक्सप्रेशन इनपुट में देते हैं तो इनफिक्स फॉर्म में देते हैं, बट मशीन उसको कैसे सॉल्व करती है, फर्स्ट मशीन कन्वर्ट करती है उसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स फॉर्म में और देन मशीन उसको इवेल्युएट करती है एंड देन उसको फाइनल रिजल्ट मिलता है. सो फॉर कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स मशीन और आवर कंप्यूटर ऑलवेज यूज स्टैक. So this is all about from my side in today's lecture. We will meet in the next lecture and we will discuss some more concept related to stack and some more examples, some more questions related to stack which can be asked or which are already asked in the previous GATE exams.
So thank you so much friends. I hope you all understand what I discussed in today's lecture. Thank you so much. लेकिन